everyone, welcome to the next lecture. In this lecture, we are going to discuss the next topic, that is relation. In this topic, we discuss what is domain, codomain, range and some example of this topic. Now see, what is relation? So before that, we see first one example and then we discuss the definition of relation. Suppose we are given the two non-empty set A contain element A, B and set B contain element 1, 2. So here we are given the two non-empty set A and B, and if we write the A cross B, that is a Cartesian product of AB, then A cross B contain all possible ordered pair such that first element is a member of first set and second element, that is Y, is a member of second set. अब कौन से ऑर्डर पेयर यहाँ पे आ सकते हैं? तो now see here, first element of set A is A and it is map on this all the element of set B, that is we get the order pair A comma 1, A comma 2. Similarly, next element of set A is B, B is map on 1 and 2. So we get B comma 1, B comma 2. So these are the all order pair containing this Cartesian product. But sometimes we are not interested in all the order pairs. We require some specific collection of elements from this Cartesian product. यहाँ पे ऑल ऑर्डर पेयर फ्रॉम सेट ए टू बी जितने पॉसिबल मैपिंग है उन सबका कनेक्शन किया है. बट अगर मुझे ऐसे ऑर्डर पेयर का कनेक्शन करना है जहाँ पे सेकेंड एलिमेंट ऑड है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक कंडीशन अप्लाई किया है. जो कंडीशन उससे सेटिस्फाइड करेगा उन्हीं ऑर्डर पेयर को मुझे कलेक्ट करना है. द कंडीशन इज सेकेंड एलिमेंट मस्ट बी ऑड. सो हियर फ्रॉम दिस ऑर्डर पेयर A comma 1, A is map on 1 and 1 is an odd number. Again B comma 1 is contained in this set R. So now see here, R is a subset of this Cartesian product and here it is a collection of ordered pair whose first element is again a member of first set, second element is again a member of second set, but the condition is second element is odd. So इस तरह से जब हम Cartesian product में के कुछ element उठाते हैं with certain condition देके, so वहाँ पे जो हमें set मिलता है, new set, that set is nothing but a relation. So ये क्या बनेगा हमारा, this R is nothing but a relation. And which type of relation? It is a collection of ordered pair whose second element is odd. So this is the relation. Now we see the definition of relation. So see the definition of relation. R is a relation from non-empty set A to the non-empty set B is a subset of the Cartesian product A cross B. इसी का meaning क्या होता है? It is nothing but R is a mapping from set A to B and this R is called relation if and only if R is a subset of A cross B. If R is a subset of Cartesian product, then we can say R is a relation. If R is a relation, then it must be the subset of Cartesian product. अब यहाँ इस एग्जाम्पल में भी देखो, हमने जो R सेट लिया है वो आपके कौन से एलिमेंट का कलेक्शन लिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की एलिमेंट का कलेक्शन किया है कि जिनका सेकेंड एलिमेंट कैसा है ऑड. सो इसी में से कुछ एलिमेंट उठा के आपने क्या बना दिया, आर सेट. सो आर अगर रिलेशन है तो इट मस्ट बी द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, और अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई सबसेट है तो इट इज नथिंग बट द रिलेशन. सो ये कैसे रहेगा, वाइस वर्सा दोनों स्टेटमेंट ट्रू. अब एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर रिलेशन शो कर रहा है तो वहां पे क्या होता है कि फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से रिलेट होता है. मतलब ये जो एक्चुअली हम यहाँ पे रिलेशन दिखा रहे हैं उसी को अगर आप वेन डायग्राम से देखते हैं तो हियर सपोज सेट A and this is our set B. Element is A, B and B set contain element 1, 2. Now this relation contain element A comma 1, that is A is related to 1 and B is related to 1. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेशन. सो रिलेशन जो हमने वहां पे डिफाइन किया है. सो यहाँ पे देखो जो नेक्स्ट कंडीशन है, द सबसेट इज डिराइव्ड by describing between the first element and the second element of the order pair. That means ये जो हमने रिलेशन का सेट बनाया तो इस रिलेशन के सेट में जो एलिमेंट बिलोंग करेंगे that is actually denoting the first element is related to the second element with given relation. Now we see one more example. Now we see the next example. Here we have given set A contain element 1, 2, 3, 5. Set B contain element 4, 6, 9. Define a relation R from set A to B. Let R is a collection of ordered pair
किस टाइप के ऑर्डर पेयर? द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल x एंड y इज ऑड एंड हियर x इज बिलोंगिंग टू सेट A एंड y इज बिलोंगिंग टू सेट B. दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, R is a subset of Cartesian product A cross B. So first we see arrow diagram corresponding to this relation. Then we write this set in a roster form and then we discuss the definition of domain, codomain and range with this example. So here we have given set A contain element 1, 2, 3, 5 and set B contain element 4, 6, 9. Now here X element is related to Y. X जो एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, ये सेकेंड एलिमेंट से कब रिलेट होगा? इफ हियर डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड. हियर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट A इज 1. अब 1 इनमें से कौन से एलिमेंट के ऊपर मैप हो सकता है वो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? B के एलिमेंट के साथ में उनका डिफरेंस. द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट A इज 1. 1 if we take the difference with 4, so 1 minus 4 is 3, that means odd, so 1 is related to 4. So here this is the 1 is map on 4. Now here if we take 1 minus 6, so 1 minus 6 is 5, so 1 is map on 6. Similarly if we take 2, so 2 and 4 इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2, that means वो इवन नंबर आएगा, so 2 is not related to 4. Then here 2 is not related to 6 but 2 is related to 9 because 2 and 9 इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? It is a 7 and 7 is a odd number. Now here 3 is related to 5 because if we take the difference between 3 and 4 then we get 1. Then 3 is related to 6 also. Similarly if we take the difference of 5 and 4, so 5 and 4 का difference क्या होगा? Again it is a 5 and 6 का difference भी क्या हो जाएगा? 1. I am taking just simply difference. वहाँ पे मैंने प्लस माइनस ये कंसेप्ट नहीं देखा क्योंकि प्लस 1 रहो कि माइनस 1 रहो अल्टीमेटली इट इज ए ऑड नंबर, इसलिए मैं जस्ट डिफरेंस चेक कर रही हूँ कि कितना नंबर्स का डिफरेंस फर्स्ट सेट एंड सेकंड सेट में. सो इफ इट इज ए ऑड देन देयर इज ए मैपिंग. सो ये जो हमने एरो डायग्राम बनाई है उसी एलिमेंट को अगर हम कलेक्ट करते हैं तो वी गेट द सेट आर इन ए रोस्टर फॉर्म. सो हियर आर इज इक्वल्स टू 1 इज मैप ऑन 4, 1 is map on 6, then 2 is map on 9 and 3 is map on 4, 3 is map on 6, 5 is map on 4, 5 is map on 6. So these are the elements contained in our set and these are the only elements satisfying this condition. So here this R actually अगर आपने A cross B निकाल के देखा होता तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही ये R क्या होता था? सबसेट. So here A cross B contain all possible order pair. उनमें से यही एलिमेंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं. इसका मतलब क्या हो गया? ये जो हमने R इक्वल्स टू सेट लिखा है इट इज नथिंग बट सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ रिलेशन. तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ रिलेशन. ये जो हमने यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में एलिमेंट को लिखा है R के अंदर, सो इट इज नथिंग बट द रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन. सो हियर इट इज ए सेट बिल्डर फॉर्म एंड इट इज ए रोस्टर फॉर्म. व्हाट इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज? सो वन बाय वन हम इसी एग्जांपल की हेल्प से डिस्कस करेंगे तीनों डेफिनेशन. सो फर्स्ट वन इज डोमेन इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट. Here D is equals to collection of element such that the order pair A comma B is belonging to R. R that is nothing but the relation. Order pair जो भी relation के सेट में belong कर रहे उस order pair के first element का collection that is nothing but domain. So now here in this example these are the order pairs contained in our set R and from this order pair if we collect the first element तो first order pair देखो it is a 1 comma 4, so first element is 1. So it is belonging to our domain. Second element is 1 comma 6 and here 1 is the first element which we have already written here and in the set we are not write the element repeatedly. So 1 again 1 लिखने की जरूरत नहीं, skip that element. Next is 2. 2 comma 9 is order pair से first element है 2, so this 2 is belonging to our domain. Next will be 3 and here next is 5. 1, 2, 3, 5 these are the elements of this domain set. And if you observe this domain set, so actually we are collecting the first element and first element in the order pair is nothing but the member of this set A. That means domain is always subset of set A. Sometimes it is a proper subset, sometimes domain is equals to set A. तो ये दोनों कंडीशन आ सकती है. जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमारा डोमेन इज एक्चुअली
सेट ए बन गया है। तो यहाँ पे डोमेन इक्वल्स टू क्या हो गया है, फॉर दिस एग्जाम्पल इट इज इक्वल्स टू सेट ए, बट समटाइम्स वी गेट द प्रॉपर सबसेट ऑल्सो। हम वो भी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी सी द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज ए रेंज। अब रेंज मीन्स क्या होगा, जिस तरह से यहाँ पे डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन किया है, सेम वे रेंज क्या करेगा, सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन। मतलब ये रेंज is nothing but the set collection of B such that this order pair is belonging to R. So relation set के अंदर जो भी order pair belong कर रहे हैं उनका जो second element है उनका collection, that is nothing but range. So now see here in this example, range set for this example is second element का collection. So here second element is 4, then here second element is 6, then next is 9, next is 4 is already written here, 6 is already given here, then next is 4 and next is 6. So again repeated element यहाँ पे आ रहे हैं, तो repeated को हमें नहीं लिखना है. So this is our range set. So here this is the range set for this relation, this is the domain set for this relation. And if you again observe this range set, the range set actually contain the second element from this order pair, और order pair का second element कहाँ से आता है, second element comes from this second set. That means range is always a subset of, for this example, range set is equals to B. Okay. So sometimes आपको equality भी मिल सकती है, sometimes range set proper subset of B भी मिल सकता है. Next concept is codomain. अब codomain क्या होगा, जैसे domain यहाँ पे क्या था, domain is a related to first set A. अब codomain is related to the second set. So codomain, that is nothing but complete set B. यहाँ पे हमने रिलेशन कैसे डिफाइन किया था, फ्रॉम सेट ए टू बी. सो जिस सेट के ऊपर आप मैप कर रहे हैं ना, तो उस सेट के सभी एलिमेंट का कलेक्शन, दैट इज नथिंग बट अवर कोडोमेन. सो ये कोडोमेन इज नथिंग बट कंप्लीट सेट बी. अब देखो यहाँ पे हमारा डोमेन इज इक्वल्स टू ए आ गया था, रेंज इक्वल्स टू बी, बट ये ऑलवेज नहीं होता है. तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे ये कंडीशन नहीं है. नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. Here set A and set B मैंने as it is लिखा है, बट यहाँ पे जस्ट रिलेशन को चेंज किया. रिलेशन इज अगेन mapping from set A to B. Here the relation R is defined by, it is a collection of order pair whose first element is odd and second element is even. अब यहाँ पे रिलेशन कैसा है, फ्रॉम सेट A to B. So A to B रिलेशन है, इसका मतलब है ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, मस्ट बी द मेंबर ऑफ फर्स्ट सेट and second element must be the member of second set, because we know that definition of relation says that relation is a subset of Cartesian product. तो यहाँ पे अगर ये मेंशन नहीं किया है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का है, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट का है, बट इट इज ए कंसिडरेबल, बिकॉज हमने यहाँ पे आर को क्या कहा है, रिलेशन. तो रिलेशन है, इसका मतलब है ऑब्वियसली इट इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी का सबसेट है. तो ऑर्डर पेयर जो भी इस सेट में आएंगे उसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट सेट का, एंड सेकेंड एलिमेंट इज ए मेंबर ऑफ सेकेंड सेट. अगेन हियर इस रिलेशन के करस्पॉन्डिंग अगर मैं एरो डायग्राम डिनोट करती हूँ, तो हियर सेट ए कंटेन एलिमेंट 1 2 3 5 एंड सेट बी कंटेन एलिमेंट 4 6 9. नाउ रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, मस्ट बी ऑड, एंड सेकेंड एलिमेंट मस्ट बी इवन. अब देखो ए सेट में ऑड नंबर है फर्स्ट 1 किसके ऊपर मैप होगा, इवन नंबर के ऊपर. दैट मीन्स 1 इज रिलेटेड विथ 4, 1 इज रिलेटेड विथ 6. ओके. नाउ 2 के रिलेटेड कोई रिलेशन नहीं रहेगा, बिकॉज 2 यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, और यहाँ पे ऑर्डर पेयर वही बिलोंग कर रहे हैं आर के अंदर जिसका फर्स्ट एलिमेंट ऑड है. सो ये 2 किसी भी एलिमेंट के ऊपर मैप नहीं होगा. व्हाट अबाउट 3 इज ए ऑड नंबर, और ये किसके ऊपर मैप होगा, इवन नंबर के ऊपर. दैट मीन्स 3 इज रिलेटेड टू 4, 3 इज रिलेटेड टू 6. नेक्स्ट एलिमेंट इज 5 इज ऑड नंबर. So 5 again odd है, that means यहाँ पे क्या होगा, 5 is map on even number. So 5 is map on 4 and 5 is map on 6. अब इन सभी मैपिंग को अगर हम सेट के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो दैट मीन्स इस सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ रिलेशन को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो इट कंटेन एलिमेंट 1, 4, 1, 6, 3, 4, 3, 6, then 5, 4 and 5, 6. So ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट.
एंड ये हो गया सेट विद द फॉर्म ऑफ सेट। तो अब नाउ सी हियर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में अगर टोटल एलिमेंट की बात करते तो ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट कितने होते थे? इस सेट ए में कंटेन एलिमेंट है 4, बी कंटेन एलिमेंट 3। सो कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू बी दैट इज नथिंग बट द कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितने आते थे? इट इज कंटेन 12 एलिमेंट, और उन 12 में से हमने कुछ एलिमेंट का कलेक्शन बना लिया, उस एलिमेंट को कलेक्ट करके एक सेट बनाया। जो सेट हमें यहाँ पे मिला है इट इज ए रिलेशन। रिलेशन कैसा है? यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अवर आर इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब जो एलिमेंट रिलेशन के अंदर नहीं है उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? देखो ये 2,4 इट इज नॉट बिलोंगिंग टू सेट आर। इसका मीनिंग क्या होता है कि 2 इज नॉट रिलेटेड टू 4, ये 2 इज नॉट रिलेटेड टू 4 विथ आर रिलेशन। आर मतलब क्या है? रिलेशन। और ये 2 एलिमेंट कैसा है? 4 के साथ में रिलेटेड नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, दैट मीन्स 2 is not related with 4 with relation R. Or if any order pair is belonging to relation, that means for example 5,4 ये कैसा है? R set में belong कर रहा है, so we can say 5 is related to 4. So ये कोई order pair अगर relation के set में belong करता है, इसका मतलब क्या होता है? First element is related to second with given relation। जो भी रिलेशन है उस रिलेशन के साथ में फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से रिलेट हो रहा है। और अनदर कंसेप्ट इज जिस एलिमेंट को आप रिलेट कर रहे हैं ना उसको बोलते हैं इमेज। ये 1 का इमेज क्या है? 4, 1 का इमेज इज 6। सो बी सेट के एलिमेंट जिसके ऊपर ए सेट के एलिमेंट मैप हो रहा है तो दैट इज नथिंग बट इमेजेस। ओके, सी फॉर दिस रिलेशन इफ यू वांट टू फाइंड डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। सो डोमेन मीन्स क्या रहता है? जो ऑर्डर पेयर रिलेशन के सेट में बिलोंग कर रहा है उस ऑर्डर पेयर में से फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन। तो हियर इन दिस एग्जांपल डोमेन इज इक्वल्स टू इट इज फर्स्ट एलिमेंट इज 1, सेकेंड इज दिस इन दिस ऑर्डर पेयर 3,4, सो इट इज ए 3, देन नेक्स्ट इज 5। अब देखो ये जो सेट है ये सबसेट ऑफ सेट ए। सो ये डोमेन इज सबसेट ऑफ सेट A. Sometimes it is equals to set A, जैसे लास्ट एग्जांपल में completely equals to set A हो गया था। Sometimes it is a proper subset. So necessary नहीं है कि domain is a completely set A always. It is a subset of set A. So domain is a subset of set A. Now what about the range? Range set कैसा रहता है? Range is a set of collection of the element if the order pair is belonging to set R. Now, इस सेट के लिए अगर रेंज सेट बनाते हो तो रेंज सेट में क्या रहता है? कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट। तो ये सेकेंड एलिमेंट, तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर इज 1,4, उस 4 को हम यहाँ पे लिख देंगे सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन जो ऑर्डर पेयर इस आर सेट में बिलोंग कर रहे हैं। नेक्स्ट इज 1,6, सो 6 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट इज 3,4 बट 4 ऑलरेडी लिखा है। देन नेक्स्ट इज 3,6, 5,4, 5,6 तो ऑलरेडी हुए। सो रेंज सेट। अब इस रेंज सेट को बी सेट के साथ में अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये कैसा है? कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट, दैट मीन्स इट इज अ मेंबर ऑफ सेट बी। सो ऑल द एलिमेंट ऑफ रेंज सेट इज ऑलवेज द मेंबर ऑफ सेट बी, सो इट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है। सिमिलरली ऑल द एलिमेंट ऑफ डोमेन इज ऑलवेज a member of set A because domain is a collection of first element और first element always क्या होता है? set A का element, that's why domain is always subset of set A. And next is codomain. codomain मतलब ये क्या रहता है? completely set B. अब R relation A to B अगर ले रहे हैं, ये R कैसा था हमारा relation from set A to B, so completely set B is nothing but codomain. So here element of codomain set is 4, 6, 9. Thank you. Like, share and subscribe.